Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias DRTSPR. Namaste, Adab, hello, and a warm welcome to Partyless India movement, which we have been another summer in our lives as we have started journey together with them. Ashok Patel ji, namaskar. और डॉक्टर सचिन पेटकर जी, उनको भी हार्दिक स्वागत, क्योंकि वो जी एक नमस्ते। अच्छी सी एक एनसाइक्लोपीडिया माने सब कुछ समाचार एक जगह, उस तरह की किताब वो रच रहे हैं। अशोक पटेल जी ने कल बताया, उनको शुभकामनाएं। और हम डिस्कस करके फिर भी उसको लॉन्च भी एक अच्छी तरीके से करना चाहते थे। आई हैव हर्ड इट फ्रॉम अशोक पटेल जी, उसके लिए भी आपको बधाई हो, क्योंकि जी नॉलेज शुक्रिया। नॉलेज इज पावर। ज्ञानी या जो होता है वही हमारी शक्ति। तो ये ज्ञान अगर शक्ति बनना चाहिए, इफ द नॉलेज हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू पावर, दैट इज पीपल्स पावर, इट इज द वोट through which you elect your representative, not ruler. Right from panchayat to Lok Sabha is more fundamental and important. तो जिस तरह आप चुनते हो पालक को, आप शक्तिमान हो जाएंगे, सरपंच से लेके हमारे पार्लियामेंट मेंबर तक। तो बुद्धि से चुननी पड़ेगी और हमारी शक्ति से ही उनको काम करना पड़ेगा। हम जिनको चुनते हैं उनकी शक्ति हम होने चाहिए, माने संविधान। हम जो है संविधान है। दैट पावर शुड बी वी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। So that's a beautiful thing. And today we are 25th January. We will be celebrating 16th Voters Day. Now, vote chori and all that nonsense is going on. Why vote chori? When you are attaining an age of 18 years, every year there is addition. These adult franchise are invited to get into the electoral roll so that you can get the voter ID card and you can go and vote to elect your own representative. This is very fundamental. So every year we do that. And those who are lost their lives, the family members, their votes are deleted. And if you are migrating from one area to the other, Form 8 will be there, Form 6 will be there for you to register, enroll, and the purity of electoral rolls we call. So voters listed together in that area, booth-wise, poll-wise for corporations, or when you call Sarpanch in Panchayat, there they enroll you for that ward member, then Sarpanch, then municipalities, council, municipal councillor we call. When it comes to corporators, to elect corporators, likewise legislative assembly, you are a voter. Again, parliament, you are a voter. So the voter ID starts from your panchayat ward till parliament, you are the voter. But Article 73 and 74 amendments, wherein there should not be no party at all in the local body elections. As such, we wanted to debate that there is no party at all, but we'll come back later. I don't want to confuse. So we are celebrating the 16th year of Voters Day Enlightenment. And I'll just get back to Ashok Patel ji. Ab shuru kijiye, sir. So I don't want to take more of, I think this is enough. The purity of electoral rolls we call. All those registered, enlisted should go and vote. 100% are they voting? No. Please go ahead, sir. So it is all about enlightenment, as you already said. And if we say something about electoral process, this is the evolvement. इसको हम हिंदी में उत्क्रांति कहेंगे। तो ये इवोल्यूशन, यह उत्क्रांति, ये फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ आवर वोटिंग, पहले दिन से ही ये प्रक्रिया जो है ये निरंतर उत्क्रांत
होती चली जा रही है। तो दैट्स इट। ऑन द डे ऑफ दिस 16th Waters Day, which is decided in the year 2011 by Election Commission. And the thought behind the celebration of Voters' Day is the enlightenment of all the voters. So on this day of Voters' Day, once again I will say it is all about evolution. ये सिर्फ और सिर्फ उत्क्रांति की बात है। सिमिलरली ये पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड, ये उत्क्रांत होते चला जा रहा है। तो evolution is the only truth, and that is also true about electoral process. तो हमारी जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें हम ये जो कुछ सब कुछ हम देखते चले आ रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, कि सबसे पहले तो वोटर्स का कोई लिस्ट ही नहीं था। पहले चुनाव में तो जब वोटर आते गए तो उनको तो बस आते गए और लिस्ट बनता गया है। तो वो मेरे ख्याल से आई वाज फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, आई थिंक सुकुमार सेन या ऐसा कुछ नाम था क्या टांगेला जी? I vaguely remember it. I also vaguely, I was trying to select that. Okay. Yeah. So he was I think as far as I remember सुकुमार सेन, या हो सकता है कुछ और नाम हो, लेकिन उन्होंने बहुत ही धीरे धीरे बड़े ही धैर्य के साथ जो है इस चीज को आगे बढ़ाया। और हम लोगों ने सारा कुछ इस दरमियान अनुभव किया कि पहले चुनाव में तो वो कलर के डब्बे रखे जाते थे, उनको वोटर्स को वही स्पॉट के ऊपर समझाया जाता था कि व्हाट इज इलेक्शन। वो वहां पहुंचे, उन्होंने वो बैलेट पेपर दिए गए, उन्होंने वहां पर उनको स्टैंपिंग की, कैसे मोड़ना, कैसे डब्बे में डालना। हाँ, ये क्या नाम है सचिन जी उनका? जी, सुकुमार सेन। जी बिल्कुल ठीक है। ओके। तो इस तरह से ये उत्क्रांत हुआ। और इन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया है सुकुमार सेन ने, कि जब कुछ भी नहीं था, वी वर कंप्लीटली जीरो, और दुनिया सोच रही थी कि भाई ये इतना सारा संघर्ष करके इन लोगों ने ब्रिटिशरों को वहां से, भारत से हटाया, लेकिन क्या ये लोग इस डेमोक्रेसी को ये लोग मतलब अपना पाएंगे क्या? लेकिन इस जो हमें ये वोट चोरी और सारी बातों को उस तरह से मतलब क्या कहें उसको कि नकारात्मक रूप से न लेते हुए हम लोगों ने ये देखना चाहिए कि हमने अब तक क्या क्या किया है। तो हमने तो बिल्कुल शून्य में से सर्जन किया। जहां लिस्ट नहीं था वहां लिस्ट बन गया, जहां वोटर कार्ड नहीं था वहां वोटर कार्ड बन गया, और उस कार्ड में भी फोटो भी समाविष्ट हो गए। और ये पूरे के पूरे, सबसे पहले तो आप देखिए कि ये पंचायती राज भी नहीं था, 3 लेयर सिस्टम भी नहीं था। तो ये 3 लेयर सिस्टम भी आफ्टर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ये भी हमें आज मिल गया। तो एकदम टॉप से लेकर के हम किसी भी एकदम अनजान रास्तों पे बसे हुए कोई भी गांव, चाहे पहाड़ी पे हो, चाहे समंदर में हो, नदी में हो, हर उस गांव के अंतिम व्यक्ति तक आज हम पहुंच
पाए हैं। फिर भी हाँ एक बात है कि जैसे जैसे हम उत्क्रांत होते गए तो वैसे वैसे बूथ कैप्चरिंग से लेकर के हम जो हैं आज ये क्या कहते हैं, वोट चोरी। वोट चोरी क्या, अब तो पूरा का पूरा बोलते हैं कि पूरे स्टेट की चोरी हो जाती है। ये क्रांति ज्यादा हुई है। वोट कैप्चर से वोट वोट चोरी। अब तो हमारे सचिन जी बता पाएंगे उसमें क्या है। और और वोट चोरी के बाद वो हरियाणा, वो राहुल जी ने जो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, उसमें उन्होंने जो हाइड्रोजन बम एच फाइल्स यानी उन्होंने बताया कि कैसे पूरा का पूरा राज्य चोरी हो सकता है। तो पूरा हरियाणा राज्य चोरी हो गया। वो कौन सी, ब्राजील की एक मॉडल को उन्होंने दिखा दिया है कि ब्राजील के मॉडल का नाम हमारे वोटर लिस्ट में 22 बार आ गया। तो खैर हम बाद जैसे में अब तक, बाद में राहुल जी भी चुप हो गए और मुंबई की हाँ म्युनिसिपल पुरपालक शाखा चुनाव भी हो गए। मैं इसीलिए हाँ, ये अभी भी, ये अभी भी आज भी ये चल रहा है। हम लोगों ने फिर बिहार के इलेक्शन में एसआईआर को भी देखा, हाँ और वहां फिर एसआईआर के आंकड़े भी, मेरे ख्याल से आपने ही कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए थे, एसआईआर के आंकड़े हैं, हम्म, और उसमें भी बिल्कुल एब्सर्ड आंकड़े हैं, वो जो इलेक्शन कमीशन ने ही प्रस्तुत किए थे, बिल्कुल एब्सर्ड आंकड़े। तो खैर फिर भी हम आज के दिन, आज के इस वोटर्स दिन पर हम ये कहना चाहेंगे कि आज भी हमारे लिए रास्ते तो हैं, चाहे इतनी सारी बातें आती हैं, फिर भी हम कहेंगे कि देर आर ऑलवेज ए वे, हमेशा हमेशा रास्ता तो होता ही है। राइट। तो आपने अपने इसी चैनल के कार्यक्रम में हम लोगों ने ऑलरेडी बूथ ऑफिस की बात प्रस्तुत करी है, या हैं? या तो ये बूथ ऑफिस की बात कि वाई वाई there should not be a booth office एवरी in each and every booth area। तो ये वाली जो बात है, मैं चाहता हूं कि अभी थोड़ा सचिन जी बात सचिन जी, करने, या सचिन हाँ पेडनेकर जी सचिन बात जी करने के उसको बाद फिर थोड़ा हम उसके ज्यादा ऊपर गौर ज्यादा करेंगे। स्पष्ट करें। या जी सचिन जी, जी डॉक्टर जी सचिन जी, एक तो तमाशा हो गया जिस तरह वोट चोरी की बात कर रहे हैं। मेरे भी वोट आज तक, मेरे और मेरे वाइफ के आज तक 5-6 साल, 2 इलेक्शन हो गए, आज तक मेरे वाइफ और मेरे वोट अपने बूथ में नहीं आए। मेरे मदर एक सिस्टर के एक जगह रहते, हम यही घर में रहते मेरे मदर के साथ, मेरे वोट कहीं बाहर है। वो डिलीटेड वोट लिस्ट में गया था। किस तरह वोट चोरी की जाती है, आप कोई उसको प्रस्ताव नहीं करता, डिलीटेड, लेकिन डिलीटेड वोट लिस्ट में हमारे नाम थे। तो वो बूथ लेकर हम वहां चले गए थे। तो यही तो बात कर रहे हैं, क्रांतिकारी उपक्रांतिकारी। लेकिन आज तक चुनाव अधिकारी ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, भारत चुनावी अधिकारी हो, या राष्ट्र की, और ये हमारे लोकल जीएचएमसी जो मेयर है और कलेक्टर है, उनके साथ तो आज तक उसके में कोई बदलाव आया ही नहीं है। और ये पूरा का पूरा वोट चोरी, जब हम वोट डालने जाते हैं, ना हमारी बूथ पता चलती है, ना आप कहाँ है पता चलती है। इससे लोग वोट डालने से इनकार करके घर में जाके बैठते हैं या हॉलिडे मनाने जाते हैं। तब उनके सारे वोट्स जो है दूसरे लोग डालते हैं। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात हुई, ये सब मामले क्या है, और क्यों जन आंदोलन कांग्रेस राहुल गांधी ने नहीं किया? क्या नेशनल हेराल्ड जैसे केसेस उनको पीछे किया है क्या? भारत जोड़ो जब कर सकते थे, वोट चोरी को रोको, इस तरह की आंदोलन हो सकता था, डॉक्टर सचिन पेडनेकर जी। तो आप किस तरह देखते हैं आज के दिन? जी देखिए, राहुल गांधी ने जो एक्सपोज किया, सो उसमें क्या हो रहा है कि ऐसी सभी बातों से
चोरी तो पकड़ी जा रही है, चोरी तो पकड़ी जा रही है, चोर भी आइडेंटिफाई हो रहा है, लेकिन वो वहीं पे खत्म हो जाता है, वो आगे नहीं चल सकता है। और क्यों नहीं चल सकता है? क्योंकि अल्टीमेट सॉल्यूशन तो यही होगा ना, अल्टीमेट सॉल्यूशन तो यही होगा कि चोर चोरी कर ही नहीं पाए, हाँ, वो सॉल्यूशन होगा। और वो सॉल्यूशन जिसमें है वो है कॉन्स्टिट्यूशन को 100% को स्वीकार करना। कॉन्स्टिट्यूशन में पावर पोजीशंस भी है, लेकिन उसके ऊपर भी उसको कंट्रोल करने का कोई ना कोई एक एंटिटी रहता है। जैसे लोग सुप्रीम है, लेकिन लोगों के हाथ में कुछ भी डायरेक्टली नहीं है। तो जो कुछ पॉलिसीज बनाना है और उसको लेजिटिमाइज करना है, वो रिप्रेजेंटेशन के जरिए ही होगा, इसीलिए पार्लियामेंट है। लेकिन वो तो सिर्फ पॉलिसीज बनाएंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे। एग्जीक्यूशन के लिए एग्जीक्यूटिव है, लेकिन एग्जीक्यूटिव अगर ठीक से काम नहीं करता है तो जुडिशरी भी है। तो एक दूसरे से पूरे के पूरे एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल है, कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, और इसी से काम चलेगा। अभी हम जो कहते हैं हमेशा कि ये पार्टियां आ जाती है और सब कुछ हाईजैक कर देती है, और ये पार्टियां का कोई मतलब नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर भी वो चल रहा है। तो यही से शुरुआत होती है। मैं एक दो बातें यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि आज नेशनल वोटर्स डे है। देखिए, मैं एक एनालॉजी देना चाहता हूँ। हम शेयर मार्केट देखते हैं, तो शेयर मार्केट में जो यूनिट होता है शेयर मार्केट में, वो होता है इन्वेस्टर। और सबको पता है कि पैसा जो है उसकी खुद की कोई कीमत नहीं है, उसकी खुद की कोई कीमत नहीं, उसको कीमत दी जाती है। लेकिन इन द शेयर मार्केट द करेंसी इज द शेयर। इन्वेस्टर भले ही गड्ढे में जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें शेयर चाहिए उसका। उसी तरीके से इस डेमोक्रेसी का जो यूनिट है वो है सिटीजन, लेकिन करेंसी होती है वोट। और जैसे शेयर मार्केट में पैसा खर्च करके आप शेयर लेते हो, कुछ भी करके शेयर लेते हो, और जो चालाक होता है वो ऐसा शेयर लेता है जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो वैसे ही समाज में जो चालाक लोग हैं, वो डेमोक्रेसी में जो सिटीजन है, जो यूनिट ऑफ डेमोक्रेसी है, उसके पास जो उसकी करेंसी होती है, जिसको कहते हैं वोट, उसको पता है उसकी कीमत सबसे ज्यादा है। वो पैसा फेंकेगा और करेंसी, वो जो वोट नाम की करेंसी है उसको ले लेगा, और ये भी बता देगा लोगों को कि आपका जो वोट है ना, वो बिल्कुल कीमती नहीं है, और इसके लिए ये पैसा ले लो, लाडली बहन ले लो, और कुछ फ्रिज चाहिए तो फ्रिज ले लो, रेफ्रिजरेटर ले लो, और कुछ साइकिल चाहिए ये ले लो, जो कुछ चाहिए अभी ले लो। लेकिन आपके यहाँ जो वोट है ना, जिसका आपको कोई उसका आपको कोई फायदा नहीं है, उसका कोई आप यूज ही नहीं करते हो, वो मुझे दे दो सिर्फ, बस बस उतना ही करना है आपको। तो ये चालाक लोगों को पता है वोट की रियल वैल्यू, और जिनका वोट है उनको पता नहीं है इसकी वैल्यू है क्या। इसकी कोई टेंजिबल वैल्यू नहीं, इंटेंजिबल वैल्यू इन्फिनिट है। और इसी को समझाने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए इलेक्शन कमीशन का सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है। ये कोई बात नहीं है कि 18 बरस होने के बाद हम मेजर हो जाते हैं। हम वोटिंग का अधिकार हमें 18 बरस से आगे मिल जाता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो हम 18 बरस के होने से पहले हमें इलेक्शंस के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वो शिक्षित करे, वो जानकार बनाए हमें। तभी तो हमें समझना कि हम क्या है, हमारा वोट का मतलब क्या है, क्या क्या हमारे हाथ में है, और ये व्यवस्था जो है पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किस तरीके से क्या लॉजिक बना करके हम ये हमारे सामने रखी गई है। तो वोट इज द करेंसी ऑफ इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी, और उसको हम फेंक देते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लोगों को समझनी चाहिए।
जो पॉलिटिशियंस को समझी है वो बात सिटीजन्स को समझनी चाहिए। इसका कारण यही एकमात्र है कि ग्रीक लैंग्वेज में सिटीजन को पॉलिटिकोस कहते हैं और उसी से पॉलिटिक्स आता है शब्द। तो पॉलिटिक्स का मतलब होता है सिटीजन। सिटीजन का जो विषय सिटीजन के बारे में है वो पॉलिटिक्स है। इट इज नॉट अबाउट एनी समथिंग, उस राजनीति नहीं है, वो लोगों का विषय है। तो इसीलिए कोई सिटीजन अपॉलिटिकल नहीं रह सकता है। एवरीवन हैज टू बी पॉलिटिकल, बट political doesn't mean that you have to be associated with some or other political party. Political party is something very different. It is a, क्या कह सकते हैं हम उसको, घुसपैठी कह सकते हैं, राजनीति घुसपैठी लोकतंत्र में, यही कह सकते हैं। जिनको राजनीतिक अभिलाषाएं हैं, ऐसे लोग जब लोकतंत्र में एक प्रकार से डिस्टॉर्शन कर देते हैं तो उसको कहते हैं पार्टिक्रेसी। वो पॉलिटिकल पार्टीज का सब तंत्र चल रहा है, दल तंत्र हम जिसको कहते हैं। तो यही बात है। तो हम जो अभी अशोक भाई जो बात रख रहे थे, तो यही बात है कि हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म के तहत हमने बूथ लेवल ऑफिस के बारे में प्रस्ताव डाला है और उसमें बहुत सारी बातें हमने उसमें प्रावधान की है जिससे वोट चोरी हो ही नहीं सकती है। वोट चोरी नहीं हो सकती है। बिना चुनाव कोई भी उम्मीदवार चुना नहीं जा सकता है। आज आपने देखा होगा महाराष्ट्र के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में मोर देन 70 कॉन्टेस्टेंट्स किसी एक पार्टी के बिना कॉन्टेस्टिंग, विदाउट कॉन्टेस्टिंग वो चुन के आ गए। और इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो सेक्शन 53 का 2 सब सेक्शन है उसके तहत बताया जाता है कि इसके वजह से होता है, लेकिन 53 का 2 को मिस अप्लाई किया गया है। वो मल्टी कैंडिडेट मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वो सेक्शन है, जो सेक्शन अलग गलत तरीके से यहां अप्लाई हो रहा है। आज की तारीख में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ एक ही कैंडिडेट होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं होते हैं। तो ये गलत तरीके से अप्लाई कर रहे एक्ट्स को, लॉज को, और एक पूरा का पूरा क्योटिक सिचुएशन लेके आ रहे हैं। और इसमें पूरे इलेक्शन कमीशन के साथ सभी इसमें शामिल है। लेकिन देखिए, ये जो देश है ना, ये लोगों का है। ये तो नौकरियां कर रही है। देश हमारा है, नुकसान तो लोगों का है। और इसको समझ जब तक नहीं बनती है तब तक हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन का हमने प्रस्ताव डाला है कि इलेक्शन कमीशन का बूथ लेवल ऑफिस हर बूथ में हो जाए। और दूसरी बात, ये जो नेशनल लेवल इलेक्शन कमीशन है, वो स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन, वो इसके अलावा विलेज लेवल इलेक्शन कमीशन और सिटी लेवल इलेक्शन कमीशन, ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होने चाहिए। ये भी हमने प्रावधान है। और बहुत सारे हमने सुझाव दिए हैं जो कि हमारे इस किताब में भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो यही बात है जी। तो एक पुष्टि मैं करना चाहता हूं आपसे, ये 70 लोग जो जीते हैं वो एक ही पार्टी के हैं क्या? एक ही अलायंस के हैं। म्युनिसिपल जो रूलिंग अलायंस है ये? जी, रूलिंग अलायंस है। वो स्टेट गवर्नमेंट की रूलिंग अलायंस, मतलब बीजेपी एंड अलायंस। तो कितने सीट थे वहां मुंबई म्युनिसिपल काउंसिल में, कॉर्पोरेशन में? एग्जैक्ट मुझे आंकड़ा पता नहीं, लेकिन 70 प्लस ये समाचार है। और मैं देखिए, समझता हूं more than I mean close to half if they are winning like this, then what is the fun of having an election? बिल्कुल कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये, आप देखते हैं जैसे फेज वाइज इलेक्शंस होती है, तो पहली फेज का जो वोटिंग होता है उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है, क्योंकि वो दूसरे जगह उसका प्रभावित कर सकता है, परिणाम हो सकता है, प्रभावित कर सकता है। लेकिन ये जो बिन विरोध लोग चुनकर आते हैं, उसका उसी वक्त
चुनाव आयोग उसको डिक्लेयर कर देता है। देखिए, तो देखिए, तो ये भी हाँ, प्रभावित करने तो का मैं, और बिल्कुल मुंबई जैसे सिटी में और राजकोट का भी एमपी बिना कोई वहां पर एमपी चुना गया, ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूं मैं, कहीं नहीं देखा ये आज तक। सूरत में हुआ, सॉरी, सूरत में। सूरत में डायमंड या कटर्स, वहां पर जिस या तरह चुना गया, ये मजाक हो रहा है। और ये मजाक इसलिए हो रहा क्योंकि जो अभी हमारे ज्ञानेश कुमार जी है, बिना ज्ञान के जो कहते हैं राहुल गांधी जी सब उनको, ये ज्ञानेश कुमार जी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो चुना है, वो प्रक्रिया जहां पर प्रधानमंत्री और उनके नीचे जो काम करते हैं कैबिनेट मंत्री और प्रतिपक्ष नेता, कैबिनेट मंत्री के जगह इसके पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, हमारे प्रधान न्यायमूर्ति थे, तो उसको निकाल के ये जो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर मिलके जो चुनाव आयोग को कमिश्नर्स को चुन रहे हैं, ये भी एक उसी तरह की प्रभावित जी, करने वाली है। और एक इम्यूनिटी उनको, इस तरह की इम्यूनिटी ये जो हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को नहीं है, लेकिन हमारे ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश जी, कुमार को जिस तरह यस, इम्यूनिटी दिया गया, उसको कोई कुछ नहीं बोल सकता। क्या यही आज हमारे चुनाव कमीशन जो वोटर्स के एनलाइटनमेंट करना चाहती है, जी, जो देखिए इलेक्शन डॉक्टर कमीशन जी, जो इस तरह का यस, होगा, वोटर किस तरह होगा और चुनाव प्रक्रिया किस तरह की होगी, और इसके साथ लोकतंत्र बच पाएगा क्या? हमारे पास 7 मिनट है, आप दोनों थ्री एक थ्री एंड एक मिनट में मैं इसके बारे में एक दो मिनट में बात करता हूँ। देखिए, आपने जो मुद्दा उठाया उसके बारे में भी हमने कुछ सुझाव दिया है, जिसको हम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑटोनॉमस है, लेकिन असल में वो ऑटोनॉमस नहीं है। एक तो पहली बात है कि चीफ इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट होती है, वो जो रिकमेंडिंग जो कमिटी है, उसमें होते हैं प्रधानमंत्री और एक मंत्री, गृह मंत्री मोस्टली, और ऑपोजिशन पार्टी का लीडर। लेकिन देखिए, ये चुनाव आयोग है, तो ये चुनाव आयोग किसके किसके लिए है? इलेक्शन के लिए है। और इलेक्शन से क्या होता है? तो लेजिस्लेशन भर जाता है। तो लेजिस्लेशन भर जाता है, तो यहाँ पे लेजिस्लेशन में रहने वाले, लेकिन जो निष्पक्ष होते हैं, ऐसे लोग होने चाहिए। तो हमने प्रस्ताव डाला है कि राज्यसभा का चेयरमैन होना चाहिए, और लोकसभा का स्पीकर होना चाहिए, और तीसरा होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। इसमें कोई कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो मेंबर है सिर्फ पार्लियामेंट में, वो नहीं हो सकता है। दूसरी बात, लेजिस्लेशन होता है प्रतिनिधियों की सभा, और ये प्रतिनिधि हम चुनते हैं इसीलिए कि वो मंत्रियों को क्वेश्चन करे एग्जीक्यूशन के बारे में। तो अगर एग्जीक्यूशन के हेड जो है, जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, वही इस कमेटी में बैठेंगे, तो वो तो ऐसा ही चुनाव आयोग को रिकमेंड करेंगे जो उनके जो ऐसे लोगों को चुनने में मदद करे जो उनको सवाल ही नहीं कर सकता है। चलो तो भाई, हमने ये कहा कि, तो हमने कहा निष्पक्ष होना चाहिए, उसमें ना ना प्रधानमंत्री होना चाहिए, ना ऑपोजिशन पार्टी होना चाहिए, ना कोई मंत्री होना चाहिए। वैसे तो भी ये आप बहुत सारे हैं। और एक बात है, लोकसभा स्पीकर पार्टी का है, राज्यसभा चेयरमैन जिस तरह हमारे पूर्व चेयरमैन को निकाला गया, और ये भी पूरे पार्टी का मुद्दा लेके आगे जा रहे हैं, तो हाँ, इसका वो लोकतंत्र तो का बड़ा हमारी, प्रमाद है। और मैं यस, एक चाहना चाहता हूं कि अगर 70 सीट बिना चुनाव के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मुंबई में अगर हो रहा है, तो राहुल गांधी जी कहाँ गए वोट चोरी की बात करने वाले? वो कांग्रेस अलायंस कहाँ है? शरद पवार एनसीपी पार्टी कहाँ है? और वहां ठाकरे जी, दोनों ठाकरे एक हो गए, वो होने के बाद भी इस तरह 70 सीट कैसे जीत सकते? ये मेरे को सोचने जी, वाली, क्योंकि वो 70 सीट में हम जो परिवर्तन जो कहते हैं हर सवा साल, वोटर, नया वोटर जो आता है, तो नया वोटर को आप वोट करने का मौका ही नहीं दिया, ये चुनाव कैसे हो सकता है? अशोक पटेल जी, बाद में मैं आपके पास जी, आता हूँ। जी, ठीक है। जी। जी जी सचिन जी। हाँ, ठीक है, मैं ठीक एक है। इसमें ओके ऐड ओके। करूंगा। एक तो मैं ये कह रहा था कि सभी सभी जो बाकी भी ऑफिसर्स है इलेक्शन कमीशन के, तो वो इलेक्शन कमीशन के खुद के कुछ नहीं है, वो गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी यूज करते हैं। तो उसको ऑटोनोमस कैसे कहा जा सकता है? ये एक बात। और अभी आपने जो बात रखी कि बाकी पार्टियां क्यों नहीं आवाज उठा रही है, तो बिल्कुल उसका कारण यही मात्र है कि वो राह देख रहे हैं, अलग अलग विषयों को उठाकर अपना वोट बैंक को कैसे बढ़ाया जाए जिससे वो सत्ता में आ जाए। लेकिन वो सत्ता में आने के बाद भी उनको रिफॉर्म नहीं चाहिए। यही यही
इन्हीं नहीं, जो नहीं, अभी मैं- पॉलिसीज है उसी का फायदा उनको भी लेना है, तो इसीलिए वो कभी भी एक्चुअल रिफॉर्म नहीं चाहते हैं। 70 लोग अब बिना चुनाव के जब आ रहे हैं, कितने नए वोटर होंगे। वो बदलाव की वो आग जो थी उनकी उसमें, जैसे सूरत में जिस तरह एमपी को चुना गया, और मुंबई जैसे इतनी बड़ी क्रांतिकारी एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बिना चुनाव के अगर 70 लोग चुने जा रहे हैं, तो ये एक हंसी मजाक है। ये और ज्ञानेश्वर जैसे, कुमार जैसे, जो उनको इम्यूनिटी, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि मैं भी कंप्लेनेंट हूं 2014, 17, 18 से। आज भी मेरे कंप्लेंट्स आते हैं, ज्ञानेश कुमार कुछ बताते नहीं। अशोक पटेल जी, क्या ये मजाक नहीं हो रहा? हमारे वोटर क्रांति, बिल्कुल और वोटर क्रांति की मतलब ही क्या है? केवल प्रजा की ये जो पैसा है वो खर्च करना और खाली तमाशा देखना, लोगों को, दुनिया को जी बताना है। क्या क्या जी जी जी, देखिए 3 मिनट है फाइनली आपका, 3 मिनट है ओके आप ओके या ओके ओके फाइनली फाइनली मैं ये कहूंगा कि दिस वन शो इज नॉट इनफ है, तो इसके लिए सीरीज ऑफ शो चाहिए, सीरीज ऑफ शो। और विल डू। एक फाइनल पंच लाइन कहूंगा मैं, इट इज द पंच लाइन, द होल सॉल्यूशन is to make India partyless. That वंडरफुल। is one thing. Yes. And to get partyless and to make India partyless, उसका टूल जो है वो है to make the electoral process government less. जी, वंडरफुल। मैं कहना चाहता हूं कि इससे जो हमारी चुनाव की प्रक्रिया है उसे सरकार से मुक्त करना चाहिए कंप्लीटली, राइट। विदाउट विदाउट ए सिंगल पुलिसमैन, राइट। विदाउट ए सिंगल पुलिसमैन। और ये पॉसिबल है, और ये तब पॉसिबल है कि जब ये पूरा का पूरा रेगुलेशन जो है वो मतदाताओं के हाथों में चला जाए। और मतदाताओं के हाथों में कहां से जा सकता है? वो एक ही रास्ता है, बूथ ऑफिस, एंड दैट इज द ओनली वे। राइट। अगर प्रत्येक बूथ विस्तार में एक बूथ ऑफिस बन जाता है तो Right. नंबर 1 वोटर लिस्ट उनके काबू में आ जाता है, राइट। कंप्लीट वोटर लिस्ट। राइट। और ये रियल टाइम में अपडेट भी होता रहेगा है। और Right. अगर सारे मतदाता एक होंगे तो ड्यूरिंग इलेक्शंस आल्सो Right. we will not require any police personnel. Right, sir. Your point is taken. So Yeah, so that's it. yeah, we will do So series of that's it. shows. मतदाता हो या वोटर हो, जब वो वोट करता है, तभी हमारी संस्कृति जो है लोकतंत्र बच पाएगा। और जिस तरह मतदाता बिना वोट के, सूरत हो या आज 70 के अधिक अगर कारपोरेटर्स मुंबई जैसे कारपोरेशन में बिना कोई कंटेस्ट के चुनाव के जीत रहे हैं, आ रहे हैं, ये हंसी मजाक हमारे वोटर्स के साथ है, मतदाता के साथ है। इससे बड़ा एक मिसाल क्या हो सकता है कि हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या स्टेट इलेक्शन कमीशन जो भी है, वो निष्पक्षपात नहीं है। दे आर नॉट एट ऑल इंडिपेंडेंट। वी नीड ए इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, परमानेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट फ्रॉम बूथ लेवल to the parliamentary level. Only then the voter will really vote in his own way. That is the only way democracy will survive. Otherwise, these parties, they are trying to destroy